connected my computer via LAN, okay, and my mobile is connected uh, Wi-Fi. Okay, so let us start with the session. Okay, so for this particular semester, we will be together with the subject like HMI. Okay, human machine interaction. Okay, so this is one of the most dry subject. If you will find the content of this particular um subject, then you will find the content is like very dry content. Okay, we'll see all the chapters which are there in this particular subject, and we'll also see what we are going to do and how we are going to do. Okay, because if you will try to understand this particular subject with the help of examples which I give every year for the subject, so then only you will be able to understand. Okay, because this subject is having a lot of example. Even in the book also, you will find lot of examples are there so that you will understand actually, okay, what is the required thing. Okay, so let us start with the syllabus first. Okay, we'll see all the topics. What are the course outcome? Okay, that is very very important from MBA point of view. Okay, you will not be there for the MBA accreditation for the upcoming. We are going to have MBA accreditation. That is National Board of Accreditation. One committee is there. Okay, it actually it accredit the colleges. Okay, based on the standard, based on the quality of education, based on the things whatever is there in the college. So based on this, the grade is provided to the department. Okay, so we are going to have this MBA accreditation later on. So according to those MBA accreditation, this course outcome, this mapping is also very very important. Okay, so I'm gonna show you each and everything. Okay, let us start with the syllabus first. थोड़ा अभी शायद सही हुआ है. See, so this is 8 semester ka syllabus. Okay, so this is the outline of each and every subject. This is human machine interaction, the very first subject. It includes 4 theory, practical. यहाँ पर teaching scheme actually यहाँ पर देखते हैं, so that will be good for us. So human machine interaction. So you'll be having 20 marks test one, 20 mark test two. Okay, as common we are having, and 20 will be the average of these two tests. The ninth semester examination 80 marks. Then the duration is again 3. Then we'll be having the lab. Okay, in this particular, because I have told you that the theory subject and the practical subjects are different. Okay, they will be having different schemes. Okay, so this HMI will act as a different subject. Okay, and this HMI lab, human machine interaction lab, will act as a different subject. Okay, so these are the two different subjects. So it will be having different course outcome, and this lab will be having different lab outcomes. Okay, so theory में तो बस ये है, दो टेस्ट है और एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन है. If you talk about the practical, then you will be having 25 marks per term work and 25 marks per oral. Very simple, the mechanism your HMI is having. So 25 marks term work and 25 marks oral. It becomes 50. Others are having like 50 mark per term work, 25 mark per oral and all that. Okay, but we are having for HMI and DC, we are having 25, 25, 25, 25. Okay. So as far as the HMI is concerned, HMI lab is concerned, you'll be having 25 marks per term work and 25 marks per oral. Okay. uh, देखते हैं फौरन आगे थोड़ा सा सिलेबस देखना है हम लोग को.
Sorry for the disturbance because of the technical glitches. I get disconnected from this particular meet. Okay, I'm back now. Please, someone confirm me that am I audible or not? Am I audible? Okay. Thank you so much. Okay. So we were just looking at this course outcome. These are the course outcome. These are the course objective. Okay. So these are the objective, but these are the course outcome that you need to remember throughout this particular semester. Okay. Because if you remember this one, so it will be helpful for you, and you will be, you will be realizing that these are the course outcome. यानी कि कोर्स को पढ़ने के बाद में what must be the outcome of this particular course. Okay, so if you consider these 6 chapter are there. Okay, so यहाँ पर आप देख सकते हैं total 1 2 3 4 5 6 total 6 chapters are there. So after completion of these 6 chapters, you will be able to get these course outcome. Okay, so कितने आए हैं? Let me see how many people have joined. Only 35. First day इतना ऐसा अभी बहुत कम स्टूडेंट ज्वाइन किए. आस पड़ोस वालों को बोल दो कि we are going to start the formal lectures. We have already started the formal lectures and practicals. So be present in the theory and practicals. 35 total है, इसमें से दो मैं हूँ, 33 total. We need to think on it. Okay, regarding attendance. ओके. सो पहले हम लोग ये कवर करते हैं कोर्स आउटकम क्या क्या है, एंड देन आफ्टर विल टॉक अबाउट द subject. Okay, what this particular subject actually tells you. Okay, and what you're going to learn in this particular chapter, in this particular subject. So regarding course outcome, the very first course outcome is identify user interface design principle. Okay, I think that I think that first of all we just go through the overview of this particular subject, that is क्या चाहता है ये subject में है क्या actually पढ़ने के. So for example, चलो इसको थोड़ा सा हम लोग साइड में करते हैं, थोड़ा साइड में करते हैं. चलो यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करो. सबसे पहले तो आपका जो सब्जेक्ट है दैट इज HMI. ओके, ह्यूमन मशीन इंटरेक्शन. First just try to understand if someone from your side, can anyone speak on this particular subject topic. Okay, what should be there in this particular subject में क्या होना चाहिए. Human machine interaction. Someone from your side, please. I'm not calling name of any of the student. You just come forward and say what do you think about this particular subject. आपको क्या लगता है इस सब्जेक्ट के बारे में. Okay, and then we'll have a discussion. What do you think about this subject? So Hina here. Okay. So it's like the various interfaces which will be used as a when the human and the computers are interacting. Like we cannot interact directly, so the middle interface that is used to learn more Okay. about that is human machine interaction. Okay. Very good. Very good. Appreciable. Anyone else from interaction and synchronization between humans and machines? Good. बहुत अच्छे. I want you to come forward and just switch on your mic and say. Okay. Just typing on in this particular chat box is not, Okay, so these two answers are right and good. Okay, appreciable answers from your side. In the whole subject, you're going to learn about the different interface, what Hina said right now. So you're going to learn about the different aspect of this particular interaction, how you're going to interact, how this particular interaction should be designed. Okay, and how this particular interaction should will be there for different machine, for different devices. Okay, if you are having any device like if I say, if I talk about this pen. Okay, so this is one machine. Okay, you all have seen Three Idiots, तो उसके अंदर आपको बताऊंगा यहाँ से लेकर पेन की से लेकर हर एक चीज मशीन है. ओके, सो ये मेरा एक पेन है. सो दिस इज
ये जो पेन है आपका एक मशीन, बिकॉज इट हैज अ मैकेनिकल function. Okay, if I click, if I press on this particular button, so this name will come out. Okay, and if I when I press again, so it will come, it will go. Okay, so ये भी एक मशीन है. Okay, अब इस मशीन को, इस पर्टिकुलर पेन को जो बनाया है, ओके, तो ऐसे ही क्यों बनाया है? इसको ऐसे ही क्यों बनाया? इसका साइज इतना ही क्यों है? ओके, इसका साइज इतना ही क्यों है? इसका साइज इतना बड़ा क्यों नहीं? अगर इतना बड़ा साइज होता तो क्या हम लोग उससे सही लिख पाते? वी कैन नॉट बैलेंस द पेन. ओके, हमारी पेन कभी इधर जाती है, कभी इधर जाती है, लाइक दैट. ओके, तो ऐसा कुछ होता, बट ऐसा नहीं बनाया. सो किसी भी मशीन को, whatever machine the people or the designer has made or designed, okay, they have made it in such a way that the interaction should be successful. Okay, और इसी इंट्रैक्शन को सक्सेसफुल बनाने के लिए, इसी इंट्रैक्शन को सक्सेसफुल करने के लिए, सो दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट. Okay, so human and machine, the interaction between human and machine must be successful. And how it can be successful? It can be successful if the design is good. If the design is good, and how will be the design, and how the design will be good? Okay, the design will be good if and only if there will be a good observation, there will be good analysis, there will be good implementation, there will be good testing, each and every phase, whatever we have learned in the project development life cycle. So some of the steps comes in this particular designing and development of the machine also. So all those things comes over here. Okay, अच्छा ऑब्जर्व किया होगा. फॉर एग्जांपल यू आर गोइंग टू मेक अ पेन. ठीक है, आपको किसी ने बोला है कि आपको एक पेन बनाना है. ठीक है, आपको बोला है कि उसका कैप नहीं होना चाहिए, कुछ ऐसे होना चाहिए. ठीक है, तो अब ऐसे पेन बनाने के लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले यू हैव टू बी अ गुड ऑब्जर्वर. ठीक है, आपको एक अच्छा ऑब्जर्वर बनना होगा. ठीक है, यू नीड टू ऑब्जर्व मल्टीपल पेन. आपको ऐसे बहुत सारी पेन्स को ऑब्जर्व करना होगा. ठीक है, आपको उनकी स्टडी करना होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं ना लिटरेचर सर्वे एंड स्टडी, जो भी होती है. So that all kind of studies you have to do. Okay, then you will come to know that the people have used what kind of mechanism, people have what kind of material, people have what kind of, you know, कौन से टाइप का, कौन सा कलर यूज करना चाहिए, कौन सा मैकेनिज्म यूज करना चाहिए, और इसका जो पेन होल्डिंग होता है जो जेब में लगाते हैं, तो ये कैसे होना चाहिए. ईच एंड एवरीथिंग यू विल वर्क. ओके, and you will observe for multiple people. Okay, multiple designers. Okay? And then you are going to propose your design. Okay, absolutely ऐसे ही होता है literature survey में. What you are going to do in literature survey? Sorry. Sorry. So you're going to study multiple, you know, pen from multiple designer, from various designer, and then you're going to propose the design of your pen. Okay, and after that you will implement it, you will design it, you will develop it. Okay, and after that you will test it. Okay, and if it gets success, then only you will release it. So we have now we have numerous process, we have numerous steps in this particular designing process. So we are going to learn about all these things. Okay, so वही मैं चाह रहा था कि आपको एक थोड़ा सा सब्जेक्ट का ओवरव्यू हो जाए before going through the before going through the chapters. Okay, chapters, उनके कोर्स आउटकम्स से पहले ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए. ठीक है, तो हमारा गोल क्या है? द गोल बिहाइंड आवर सब्जेक्ट इज दैट after completion, मैं बोलता हूँ. Okay, after completion of this particular subject, you will be a good designer. Okay, you will be a good machine designer. Okay, कोई भी एक मशीन, anything. Okay, ये एक माउस है, so this is a machine. ये मेरा लैपटॉप है, this is one machine. Okay, so anything, आप कुछ भी पकड़ो, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका एक की है. Okay, ये जो की है, so ये भी एक तरह का मशीन है, बिकॉज अगर ये मशीन, ये जो की है, इसको ऐसा बनाया गया. ओके, तो इसके लिए आप इसको प्रॉपरली होल्ड कर पा रहे हो, और प्रॉपरली इससे आप अपने डोर्स वगैरह ओपन कर लेते हो. ओके, so these are all these things are feasible to you because
the design of this particular key is in such a way. Okay, अगर इसको ऐसा डिजाइन किया होता कि आप उसको होल्ड नहीं कर पाते, अगर उसको ऐसा गोल डिजाइन कर लिया होता तो आप उसको कहाँ से होल्ड करते, कैसे उसको घुमाते, so will be having a lot of confusion if the design is not perfect. Okay, so for each and every machine the design must be good. Okay, और वो जो डिजाइन है, वो डिजाइन और आपका जो ह्यूमन है, सो दोनों का जो मेल होगा, दोनों का जो नो कॉम्बिनेशन, जो सिंक्रोनाइजेशन होगा, सज्जाद हैज यूज्ड दिस वर्ड सिंक्रोनाइजेशन, सो दैट शुड बी करेक्ट. ओके, तो ये अगर जब तक सही नहीं होगा तब तक आपका जो है ना इंटरेक्शन सही नहीं होगा. फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल देता हूँ. एक वॉशिंग मशीन है. ओके, so washing machine is also one kind of machine. Washing machine is a kind of machine. Okay, and how you're going to use, I'll give one example, okay, of this particular washing machine later on when we start the first chapter, because that example is there in the reference book also. Okay, I told you that we are having number of examples, okay, that we learn. Okay, so you have a washing machine. Okay, you have washing machine and the operating panel also, from which you can just set the timer also, you can just start, you can swing, you can dry. Okay, so all things, मुझे तो पता नहीं इसमें कौन कौन से बटन होते हैं. So lot of buttons and the switch are there. Okay, कहाँ होते हैं? सामने फ्रंट में होते हैं. अगर वो सारे पैनल्स, वो सारे मशीन, वो सारे ऑपरेटिंग पैनल, अगर आपको ऑपरेटिंग पैनल अगर कभी आप वॉशिंग मशीन के बेस में होता, नीचे होता, तो सोचो क्या होता. एक डिजाइनर है, उसने ऐसे उसको डिजाइन किया है, उसका जो पैनल है, that panel is situated in the base. Okay, and every time when you have to set the timer, then what you need to do, you need to put your head inside the base of that particular washing machine, और जाके उसको आपको उसमें करना है. ठीक है, so if you will do like that, then each and every time आप हमेशा उसको अच्छे अच्छे लफ्ज बोलोगे, अच्छे अच्छे वर्ड से उसको याद करोगे. द डिजाइन ऑफ दैट पर्टिकुलर वॉशिंग मशीन में कैसा कैसा डिजाइन किया है. एक टाइमर भी सेट करना है, अगर स्विच भी थोड़ा सा करना है तो उसके लिए हम लोग उसके नीचे झुक के और उसके बेस में जाके वहां पे इसको ऑपरेट करना होता है. सबसे पहले तो आप उसको लोगे नहीं वॉशिंग मशीन को, बिकॉज दैट इज नॉट करेक्टली डिजाइन. ओके, वो जो आपका जो इंटरक्शन है, जो इंटरक्शन पैनल है, द पार्ट थ्रू विच द मशीन एंड द ह्यूमन इज कनेक्टेड, ह्यूमन और मशीन दोनों किस पार्ट से कनेक्टेड है, वो ऑपरेटिंग पैनल से कनेक्टेड. ओके, मैं ह्यूमन, ये मशीन. ओके, तो मैं इसको ऑपरेट कर रहा हूँ से. अगर ये ऑपरेबल नहीं होता तो क्या होता, फिर इसको अगर ऑपरेट नहीं कर पाता तो हमारा इंटरेक्शन सही नहीं हो पाता. सो दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट इज ऑल अबाउट द इंटरेक्शन एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन एंड मशीन, दोनों के बीच में. बिकॉज एवरीवेयर, इफ यू विल सी एवरीवेयर, यू विल फाइंड सम काइंड ऑफ मशीन. ओके, if any kind of machine is present between the human and the machine, तो दोनों के बीच में कुछ ना कुछ ऑपरेटिंग पैनल भी होगा, जहां से उसको हम ऑपरेट करते हैं. जहां से बोलते हैं ना, आपने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़े, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आपका आपका सिस्टम, आपका हार्डवेयर और मशीन दोनों के बीच में इंटरफेस क्या है. द इंटरफेस इज नथिंग बट द ऑपरेटिंग सिस्टम. सॉरी, मतलब आपका जो मशीन है, आपका मशीन और ह्यूमन दोनों के बीच में जो इंटरफेस है, दैट इंटरफेस इज द ऑपरेटिंग सिस्टम. तो वैसे ही यहाँ पे आपका ऑपरेटिंग पैनल. तो ये ऐसे ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आएंगी, तो विल लर्न अबाउट दैट. ओके, चलो एक बार हम लोग फटाफट अभी देखते हैं कि इसमें आपको चैप्टर्स कौन कौन से हैं. मैं आपको स्कीम बताया हूँ पहले तो. हाँ, okay, so these are the course outcome. Okay, you need to remember these course outcome if possible. Then I'll take the screenshot of this particular course outcome, then I'll send it to your group, and you will keep this particular image or this particular course outcome with you every time. Okay, so you can just realize and you can recall at any moment of time that after completion of this particular chapter, I must complete this particular part, this part, this part, and this part. Okay, so for example, identify user interface, UI design principle. तो भाई इंटरफेस को डिजाइन करने के प्रिंसिपल क्या क्या, तो अगर आपने वो आइडेंटिफाई कर लिए हैं और अगर आपको वो समझ में आ गया है, सो दैट यू हैव अचीव योर फर्स्ट कोर्स आउटकम. कांग्रेचुलेशन. ओके, देन उसके बाद में आपका सेकंड है एनालिसिस ऑफ इफेक्टिव यूजर फ्रेंडली इंटरफेस. एनालिसिस ऑफ इफेक्टिव यूजर फ्रेंडली इंटरफेस. आपका जो यूजर इंटरफेस होना चाहिए, दैट मस्ट बी यूजर फ्रेंडली. आपका जो यूजर इंटरफेस होना चाहिए, इंटरफेस पैनल होना चाहिए, यूआई, that UI design must be user friendly.
okay, so that human and machine can easily interact with each other. Okay, so if you understand how to analyze, how to analyze it, how to set it, then you have achieved the second course outcome. Second. Third, apply interactive design process in real world application. Interactive design process. So we have, I think, third chapter. In that particular chapter, you will be able to learn about the different design process. एक मशीन को डिजाइन करने के मल्टीपल प्रोसेसेस, मल्टीपल स्टेप्स क्या क्या हैं, ओके, सो दैट वी आर गोइंग टू लर्न. जब आपने वो पढ़ लेंगे, सो यू विल अचीव योर थर्ड कोर्स आउटपुट. नंबर 4, इवेलुएट यूआई डिजाइन एंड जस्टिफाई. ओके, डिजाइन करने के बाद में, डिजाइन मतलब डिजाइन कंप्लीट होने के बाद में, that UI design को evaluate and justify कर. If someone asks you why you have designed this pen in this particular way, आपने इसको राउंड बनाया है, आपने इसको स्क्वायर शेप में क्यों नहीं बनाया है, then you must be able to justify the answer of this particular question. Okay, आप प्रॉपर बता पाओगे कि इसको मैंने राउंड इसके लिए बनाया हूँ so that we can easily hold this particular pen. मैं इस पेन को होल्ड कर सकता हूँ एंड यू कैन इजीली राइट इट. ओके, अगर इसको मैं स्क्वायर बनाता तो मैं इसको सही से होल्ड नहीं कर पाता. 1 मिनट होल्ड कर पाता, 2 मिनट होल्ड कर पाता, एंड आफ्टर दैट माय फिंगर्स विल बी पैनिक. ठीक है, तो मेरे फिंगर्स में, मेरे यहाँ पर जो है ना, तो उंगली में दर्द शुरू होता, पेन शुरू, तो फिर मैं इसको ऑपरेट नहीं. सो यू मस्ट बी एबल टू जस्टिफाई. I've given only one example. If we talk about this particular mouse, अपने माउस को ऐसे ही क्यों बनाया, ठीक है, इसकी हाइट इतनी क्यों है, इसकी हाइट और बड़ी क्यों नहीं बनाई, इसकी हाइट और कम क्यों नहीं बनाई. आप सोचेंगे बहुत अच्छा कोई कारीगर है, बहुत मतलब इसको बोलेंगे ना और होशियार है थोड़ा सा, तो बोलेगा नहीं मैं थोड़ा सा और दिमाग लगाता हूँ. आपने जो माउस बनाया है, ये माउस से भी पतला माउस बनाता है, ठीक है, उसमें एकदम पतला माउस बनाया. तो पतला माउस बनाने के बाद में जब मार्केट में लाएगा तो कोई यूज करेगा उसको, कोई नहीं यूज कर पाएगा, बिकॉज आपके हाथ को इस माउस को पकड़ने के लिए इतनी हाइट तो मिनिमम रिक्वायर्ड है. ठीक है, सो ईच एंड एवरी मशीन हैज सम एस्पेक्ट, और उसके बेसिस पे उसको इवेलुएट करना और उसको जस्टिफाई करके हमको आना चाहिए. ओके, सो अगर आपको वो चीज समझ में आई, देन कांग्रेचुलेशन, यू हैव अचीव योर फोर्थ कोर्स आउट. ओके, नंबर 5, क्रिएट एप्लीकेशन फॉर सोशल एंड टेक्निकल टास्क. ये तो लास्ट वाला एक है, ये तो जब आप लोग प्रैक्टिकल में भी करेंगे तो आप लोगों को समझ. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई टेल यू यू हैव टू क्रिएट वन एप्लीकेशन, you have to create one application for recording the students data. Okay, so whatever information of the student is there, like their name, roll number, their parent number, their CGPI, their SGPI, तो हर एक चीज उनके पॉइंटर्स वगैरह आपको क्या करना है, रिकॉर्ड करना है. तो उसके लिए आपको अब क्या करते हैं, आप draw.io के अंदर आप उसके स्क्रीनशॉट बनाते हैं. अगर आपको याद होगा तो प्रोजेक्ट के लिए आप लोग ने स्क्रीनशॉट्स बनाए होंगे, तो वैसा आप लोग डिजाइन बनाएंगे. तो डिजाइन में आप लोग बताएंगे कि पहले हम लोग लॉगिन रखेंगे, पहले स्टूडेंट्स को रजिस्टर करना होगा, फिर लॉगिन, अगर रजिस्टर कर लिया है तो लॉगिन करना होगा. तो और फिर लॉगिन के बटन्स कहाँ होना चाहिए, उनके टेक्स्ट बॉक्सेस कहाँ पर होना चाहिए. फिर एक बार लॉगिन करने के बाद में जो स्क्रीन आएगी, दैट स्क्रीन, हाउ दैट पर्टिकुलर स्क्रीन शुड लुक लाइक. ओके, दैट स्क्रीन के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, उसका ये बटन यहाँ पर होना चाहिए, उसकी पोजीशन ये होना चाहिए. each and everything you will be dealing with, each and everything, because you are the UI designer. आप यूजर इंटरफेस के डिजाइनर हो. ओके, so after completion of this particular chapter, after completion of this particular subject, you will be able to design the user interface in such a way that the user will accept it, the people will accept that particular design and they can adopt it. Okay, so ये सारे के सारे कोर्स आउटकम है, ये सारे रिलेटेड है आपके डिजाइनिंग से रिलेटेड. ओके, सो आपको आगे चल के मैं ये भी बोल सकता हूँ. ओके, आपको एक एप्लीकेशन, आपको एक वेबसाइट डिजाइन करना है. ओके, आपको डिजाइन नहीं करना है एक्चुअल में कोडिंग करके, उसको डिजाइन नहीं करना है, आपको उसका जीयूआई डिजाइन करना है. ओके, कि अगर किसी ने www.xyz.com किसी ने अगर ओपन किया, देन हाउ इट शुड लुक लाइक. ओके, इसके राइट साइड में क्या होना चाहिए, लेफ्ट में क्या होना चाहिए, कुछ पैनल होना चाहिए, लॉगिन कहाँ होना चाहिए.
So you are the UI designer. You are the UI designer. Okay, and you will decide that each and every component will be placed at which position. Okay, so आपको ऐसा बोला जाएगा, आपको सारे स्क्रीनशॉट बना के उनके डिजाइनिंग आपको फाइनलाइज करना है। ओके, सो ऐसे क्वेश्चन आपको मतलब वाइवा के अंदर आते हैं, ओरल्स के अंदर आते हैं। ओके, आपको ऐसे बोला जाएगा कि एक आपको मैंने वेबसाइट बनाने बोला सोशल नेटवर्किंग, या फिर एक आपको एक एनजीओ के लिए एक वेबसाइट बनाने के लिए बोला गया, उसका उसका यूजर इंटरफेस डिजाइन कर। ओके, सो यू विल बी आस्क्ड टू डिजाइन द यूजर इंटरफेस ऑफ दैट पर्टिकुलर वेबसाइट। सो आपको सारे के सारे स्क्रीनशॉट बना के डिजाइन करना है। ओके, so this is all about the course outcome. Let us start with the chapters. Okay, कौन कौन से chapters हैं, and in that particular chapter what you're going to learn. Okay, I hope that these things are not going bouncers. Okay, we are just going through the course outcomes only, and the chapters, the name of the chapters and the topics which you are going to learn in each and every chapter. Okay, let us start with the, देखो यहाँ पर कुछ प्री रिक्वेस्टीज है, इफ यू विल फाइंड कुछ प्री रिक्वेसाइट्स है वेब टेक्नोलॉजीज। ओके, तो मैंने आपको बताया कि अगर आपको एक वेबसाइट डिजाइन करना होता है तो उसके लिए भी आपको कुछ इंफॉर्मेशन होना चाहिए। वेब टेक्नोलॉजीज, software engineering, because in software engineering there are number of steps how to design, what are the design steps, what are the design steps of एनी सॉफ्टवेयर। ठीक है, अगर आप एक सॉफ्टवेयर को बना रहे हो तो व्हाट आर द डिजाइन स्टेप्स, तो वो डिजाइन स्टेप्स यहाँ पर भी लागू होते हैं। एक्सपीरियंस इन डिजाइनिंग इंटरफेसेस फॉर एप्लीकेशन एंड वेबसाइट्स, अब भी आपको मैंने वही बोला हूँ कि एप्लीकेशन और वेबसाइट के लिए आपने, जैसे फॉर एग्जांपल most of all of you are involved in the final year project. Okay, so your guides has might have told you that you have to design the the GUI part। उसका जो GUI पार्ट है आपको उसको डिजाइन करके बताना है कि कैसा आएगा। आपका एप्लीकेशन जैसे ही ओपन होगा तो एक स्प्लैश स्क्रीन आएगी, स्प्लैश स्क्रीन के बाद में एक ऐसा डिजाइन आएगा, उसमें लॉगिन ऐसा आएगा। सो दैट ऑल इमेजिनेशन यू हैव टू डू, एंड यू हैव टू डिजाइन योर इंटरफेसेस फॉर एप्लीकेशन एज वेल एज फॉर योर वेबसाइट्स आल्सो। बेसिक नॉलेज ऑफ डिजाइनिंग टूल्स एंड लैंग्वेजेस लाइक HTML, जावा, ये तो आपको पता ही। सो दीज आर द प्रीरिक्विजिट्स। ओके, so let us start with the chapter number 1. Okay, यहाँ तक मैं आपको समझेगा, मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद में तो हम लोग कवर करेंगे। The first chapter is regarding foundation of HMI. All the foundation topics, all the foundation information of this particular subject, that is HMI, is there in the first chapter, that is foundation of HMI. We're going to learn about the history of user interface designing. इसमें भी जनरेशन है इसमें भी जनरेशन है। ओके, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड, फोर्थ, ऐसे बहुत सारे जनरेशन हैं। एक एक जनरेशन कैसे कैसे जनरेशन आई। IO चैनल्स, you know about the input and output channels, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट। हार्डवेयर एनवायरनमेंट क्या होना चाहिए, सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट क्या होना चाहिए, ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट, उसके बारे में छोटे छोटे टॉपिक्स है। Psychopathology of everyday things, one of the important thing 5 marks question in the examination. Psychopathology of psychopathology, so the study of mental illness. Okay, तो इसका जो एक्सप्लेनेशन होता है साइकोपैथोलॉजी का वैसे होता है साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे थिंग्स। सो एवरीडे थिंग्स के अंदर क्या क्या चीज आती है, क्या क्या चीज हम लोग इंटरेक्ट करते हैं, अभी अभी मैं बताऊँ ना आप लोग को नहीं समझेगा, लिटरली इसके लिए बस हम लोग थोड़ा सा मतलब एक टॉपिक देखते जाते हैं। साइकोलॉजी ऑफ एवरीडे एक्शंस, हम लोग जो चीज देखते हैं और जो चीज करते हैं तो उनकी साइकोलॉजी, तो ये भी चीज की स्टडी है। रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, you know about the reasoning, what is reasoning and what is problem solving. Problem solving is one of the most important I can say skill you must have. Okay, the problem solving skill जिसकी जितनी अच्छी होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जिसकी जितनी अच्छी होती है, वो चीजों को उतनी अच्छी से समझ सकता है। और एक अच्छा डिजाइनर, अ गुड डिजाइनर मस्ट बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर आल्सो। ओके, एक अच्छा प्रॉब्लम सॉल्वर भी अच्छा एक डिजाइनर बन सकता है। ओके, कंप्यूटर डिवाइसेस, मेमोरी, प्रोसेसिंग एंड नेटवर्क्स, these all are the part of the computer. Devices, memory, प्रोसेसिंग एंड नेटवर्क्स, इंट्रैक्शन में मॉडल्स है, फ्रेमवर्क्स है, एर्गोनॉमिक्स है,
स्टाइल्स है, एलिमेंट्स है, इंटरएक्टिविटी है, पैराडिग्म्स, ये सब वर्डिंग्स है। खाली इसके अंदर जो जो पॉइंट्स है हम लोग पढ़ेंगे, ज्यादा मतलब कुछ वो नहीं है, सिंपल है, बहुत सिंपल है। बस इतना है कि थोड़ा सा ड्राई है, तो वी ट्राई टू मेक इट एज इंटरेस्टिंग एज पॉसिबल, जितना हो सके हम लोग करेंगे इसको। ओके, सेकंड चैप्टर इज रिगार्डिंग डिजाइन एंड सॉफ्टवेयर प्रोसेस। ओके, सॉफ्टवेयर प्रोसेस आपको ऑलरेडी पता है, यू हैव डन इन द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग दैट व्हाट आर द डिजाइन प्रोसेस ऑफ अ सॉफ्टवेयर। ठीक है, उसको प्रोसेसिंग में, उसको डिजाइन करने के अंदर क्या क्या स्टेप्स होते हैं, एंड फॉर दैट यू नो दैट वी हैव मल्टीपल मॉडल्स ऑल्सो। कौन कौन से मॉडल्स है यहाँ पर भी शायद रहेंगे, मैं आपको बताऊंगा। सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल, सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल, यूजेबिलिटी इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल के अंदर आपके कुछ कुछ आते हैं, जैसे आपका वो वाटरफॉल मॉडल है, दो तीन मॉडल यहाँ पर भी आएंगे। ओके, so in the designing and software process, what are the different mistakes which we can do, or we can perform while designing a computer system? So what are the different mistakes which is possible from our side? Human interaction with the computers, and then importance of the human characteristics, human consideration, human interaction speed, ये सारे के सारे अलग अलग पैरामीटर्स है, अलग अलग एस्पेक्ट है। ठीक है, एक एक करके सारे सारे आएंगे। HMI इन सॉफ्टवेयर प्रोसेस, HMI को अगर आप इसको सॉफ्टवेयर प्रोसेस, अगर किसी सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट, उसका डिजाइनिंग की बात करेंगे, बिकॉज सॉफ्टवेयर भी एक आपका आगे चल के बोलेंगे ना उसको, सारे 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 एस्पेक्ट उसको लागू होते हैं जो हमारे एक मशीन को लागू होते हैं। ठीक है, तो अगर हम कभी HMI के एस्पेक्ट, अगर कभी हम एक सॉफ्टवेयर प्रोसेस को, एक सॉफ्टवेयर को अगर कभी लागू करें, फॉर एग्जाम्पल हमको एक सॉफ्टवेयर बनाना है, ठीक है, रेलवे, आपको एक रेलवे सिस्टम का बनाना है, रेलवे मैनेजमेंट सिस्टम। तो रेलवे मैनेजमेंट सिस्टम का अगर आपको एक सॉफ्टवेयर बनाना है, सो फॉर फॉर डिजाइनिंग दैट पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर, आपको क्या क्या चीज रिक्वायर्ड है, उसके अंदर आपको क्या क्या चीज रखना है। ठीक है, आपने आपको आपको रजिस्ट्रेशन रखना है, आपको लॉगिन रखना है, आप उसमें टिकट निकालने की सुविधा रखेंगे। सो देयर आर नंबर ऑफ थिंग यू कैन हैव इन द इन दैट पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर ऑल्सो। तो सॉफ्टवेयर के जो लाइफ साइकिल मॉडल्स है, आप लोग ने जो देखे मॉडल, वो सारे कुछ यहाँ पर भी आते हैं, उसको भी हम लोग फॉलो करेंगे। यूजेबिलिटी इंजीनियरिंग, one of the common topic, prototyping in practice, design rational, design rules, principles, standard, guidelines, rules, recognize the goal, goal directed design process, goal directed design, one of the important question, 5 marks question in examination, evaluation techniques, universal design। इसमें टॉपिक्स ना बहुत सारे टॉपिक्स मल्टीपल है, तो इसको हम लोग हर एक टॉपिक को वन बाय वन देखेंगे। Graphical user interface, the third chapter, graphical GUI, जिसको आप लोग commonly, it is commonly called as GUI, graphical user interface. Graphical user interface, popularity of graphics, obviously, देखो, टेक्निक्स होती हैं, खाली प्रेजेंट करके आना चाहिए। अगर आपको कुछ चीज का एडवर्टाइजमेंट करना है, आपको आपको अगर अपने रेस्टोरेंट का एडवर्टाइज करना है, कि आपने अगर एक रेस्टोरेंट खोले, होटल खोले, तो उसको अगर आपको उसको एडवर्टाइज करना है, सो व्हाट इफ यू विल डू इट इन द ओरल फॉर्म, सॉरी ओरल नहीं, रिटन फॉर्म में, आपने एक होर्डिंग लगाया, होर्डिंग के ऊपर आपने एक अच्छे बड़ा पैराग्राफ, होर्डिंग पे आपने एक बड़ा सा पैराग्राफ लिख दिया कि वी हैव स्टार्टेड न्यू होटल इन न्यू पनवेल, ओके, एट दिस पर्टिकुलर एड्रेस, एड्रेस पूरा कच्ची मोहल्ला, ये वो आपने इसे डाल दिया। और उसके बाद में इन इन दिस पर्टिकुलर होटल वी विल सर्व ऑल काइंड ऑफ फूड लाइक स्नैक्स, और फिर वेज नॉन वेज, ये वो, आपने हर एक चीज को रिटर्न में लिख दिया। ठीक है, तो अच्छा, एक काम आपने ये किया, और दूसरी जगह पर आपने क्या किया, दूसरी जगह पर दूसरे बंदे ने होटल खोला, उसने क्या किया, एक बड़ा सा होर्डिंग, उतना ही होर्डिंग जितने साइज का होर्डिंग आपका है, उतना ही बड़ा होर्डिंग उसने लगाया, और उसके ऊपर उसने एक अच्छा बड़ा सा ग्राफिक लगाया, होटल का फोटो लगाया, एक एक अच्छा फोटो लगाया किसी का, जेंट्स लेडीज वटेवर यू प्रीफर, और वहां पर एक अच्छा मतलब शेफ का फोटो लगा दिया, और होटल का नाम लिख दिए, और जो आपकी डिशेज है, तो डिशेज के कुछ फोटोज वगैरह वहां पे रख दिए। देखिए, इंस्टीड ऑफ द रिटर्न मटेरियल यू हैव यूज द ग्राफिक मटेरियल। ठीक है, आपने इमेजेस एंड ग्राफिक यूज करी। ठीक है, तो बोलो वो ज्यादा इफेक्टिव है कि ये वाला इफेक्टिव है? यहाँ पर सारी चीज रिटर्न में लिखी है, और यहाँ पर हर एक चीज दिख के आती है। इफ यू विल गो थ्रू, जस्ट
बाय लुकिंग एट दैट पर्टिकुलर होर्डिंग, तो आपको अगर एक नजर देखोगे तो वो जो रिटर्न लिखा हुआ है इतना सारा वो आपको याद नहीं रहेगा, बट ये चीज आपको याद नहीं। ठीक है। सो जो रिटर्न जो चीजें होती है उनसे ज्यादा जो इफेक्टिव होती है वो ग्राफिक ग्राफिक मटेरियल जो होता है वो ज्यादा इफेक्टिव। तो आपके आपके ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, आपके जीयूआई डिजाइनिंग में द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट which material, which elements you are using for designing your GUI. Okay, the graphical user interface, popularity of graphics, the concept of direct manipulation, ये भी concept है। graphical system characteristics, web user interface, interface popularity। तो इट्स ऑल अबाउट द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, मल्टीपल चीजें इसके अंदर। आप अपने इसको बिजनेस में कैसे यूज कर सकते हो, और इंटरफेस डिजाइनिंग के प्रिंसिपल्स क्या क्या है, तो आपको मैंने पहले बताया लॉट ऑफ थियरी इज देयर। ओके, वी हैव ओके। अभी भी नेट का इशू चल रहा है, बट आई थिंक मेरा लैपटॉप से कनेक्टेड और स्टिल है। मैं ऑडिबल? समवन प्लीज रिप्लाई। ओके, okay. So likewise we are having multiple this chapter number 4, chapter number 5, and chapter number 6. I will not go into the depth of these particular chapters. In screen designing, you will be, you will be designing your screen, and to which element should be placed at which position, that you need to decide, because as a designer you must decide all these things. स्क्रीन नेविगेशन, स्क्रीन फ्लो कैसे होना चाहिए, पहले कौन सा एलिमेंट आना चाहिए, उसके बाद में कौन सा एलिमेंट आना चाहिए, तो फ्लो उसका आपको मेंटेन करना है। उसके बाद में
visually pleasing composition. If you can see this one, I'm just highlighting this. So आंखों को कौन से कलर्स अच्छे लगते हैं, कौन से एलिमेंट्स अच्छे लगते हैं, सो दैट इज दैट यू नीड टू थिंक एंड देन यू नीड टू डिजाइन अकॉर्डिंगली. हमको हमारी आंख को अगर कोई रिटर्न में लिखा हुआ है तो हम लोग बहुत लेजी फील करते हैं कि just reading all those things is very quite tricky and quite difficult for us, and just looking at the graphic is very good for us. Okay, तो हम लोग एक बार देख लेंगे because naturally we all are lazy people. Okay, so if you'll see the things, then if it is a graphic like thing, then you will easily see it and you will recognize and you will stay for that particular what we can say element. Okay, or that particular hoarding. तो विजुअली प्लीजिंग, तो विजुअलाइज करने पर जो हम लोग को प्लीज कर रहे हैं कंपोजिशन, जो एलिमेंट्स प्लीज करेंगे, सो दैट वी ऑलवेज प्रीफर. ओके, अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, कितनी इंफॉर्मेशन आपको डालना है स्क्रीन पर. कहीं ऐसा ना हो कि स्क्रीन छोटी सी एंड यू विल पुट लॉट ऑफ एलिमेंट्स, लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इन दैट पर्टिकुलर स्क्रीन. ओके, ऐसे नहीं होना चाहिए. तो जितनी रिक्वायर्ड है उतना ही करना है. फोकस एंड एम्फेसिस में बहुत सारी चीज़ें. सो एक एक करके इसको हम लोग बाद में देखेंगे. द फिफ्थ चैप्टर इज रिगार्डिंग इंटरफेस डिज़ाइन फॉर मोबाइल डिवाइसेस. सो फॉर यहाँ पे स्पेसिफिकली मोबाइल डिवाइसेस के लिए इंटरफेस डिज़ाइनिंग है. तो मोबाइल इकोसिस्टम, प्लेटफॉर्म, एप्लीकेशन फ्रेमवर्क, टाइप्स ऑफ मोबाइल एप्लीकेशन होती है. उसमें कुछ विजेट्स होते हैं, कुछ एप्लीकेशंस होते हैं, कुछ गेम्स होते हैं. दीज आर द वेरी कॉमन थिंग, यू नो अबाउट इट. कुछ एप्लीकेशंस, कुछ गेम्स, कुछ विजेट्स होते हैं. मोबाइल इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर क्या है, मोबाइल 2.0 क्या है, मोबाइल के डिज़ाइन, एलिमेंट ऑफ मोबाइल डिज़ाइनिंग, उसके टूल्स क्या क्या है. So that we all the things we'll learn in this particular chapter. That is chapter number 5, interface design for mobile devices. The last one is interaction styles and communication. In this particular chapter, you will learn about the different components, the different presentation style, different types of windows. Okay, and how you can manage it. What are the different operations which can be performed on different types of windows? What is the role played by the टेक्स्ट मैसेजेस, वर्ड, सेंटेंसेस, मैसेजेस, टेक्स्ट वर्ड, और फिर आइकन्स, मल्टीमीडिया, कलर्स, ये सब का क्या इम्पैक्ट होता है. सो दैट वी लर्न इन दिस सिक्स्थ चैप्टर. ओके, इफ विल सी देन जो वेटेज है, वेटेज इज 8 सॉरी ये तो आवर्स है, तो आवर्स के हिसाब से वी कैन इजीली सी दैट कि कितना हो सकता है. तो 8 आवर्स, 10 आवर्स, 8 आवर्स, 10, 8, 8, सो सब 8, 10 में है. So you can easily see that के only 2 chapters are having वेटेज ऑफ 10 आवर्स, बाकी सबके 8 आवर्स के हैं. तो ऑलमोस्ट इक्वल वेटेज है सबका, कोई किसी का ज़्यादा कम ज़्यादा बहुत नहीं है, एक ऑलमोस्ट इक्वल वेटेज है. ठीक है, सो ये सब है. और दीज आर द बुक. एलन डिक्स करके बुक है जो कि मैं एलन डिक्स नहीं सॉरी गैलेट्स. सो दिस इज द विल्बर्ट ओ गैलेट्स की एक बुक है, असेंशियल गाइड टू यूजर इंटरफेस डिज़ाइन. इसमें आपको मैक्सिमम चीज़ आपको मिल जाएंगी. गैलेट्स है. अच्छा, रेफरेंस बुक के अंदर ये बुक है, अलबंदे, कनाडे, अय्यर, गैलेट्स ह्यूमन मशीन इंटरेक्शन. आई थिंक मेरे पास में बुक रहेंगी भी. आई नीड टू चेक दिस पर्टिकुलर बुक. मैं आप लोगों को शेयर करूंगा, देन यू कैन गो थ्रू. सी एलन डिक्स की बुक ये है मेरे पास में, मोबाइल भी है. एलन डिक्स, जैनेट फिनली. तो बुक्स आर अवेलेबल विथ मी, आप लोगों को मैं बताऊंगा. ठीक है, चलो ठीक है, यहाँ पे रुकते हैं अभी. आज का दिन के लिए सिर्फ इतना ही. अब आप लोग को चाहिए अटेंडेंस, राइट? अब अटेंडेंस अभी मैं एक सेकंड चेक करता हूँ, 2 मिनट रुको. आई चेक आउट दी अटेंडेंस, कहाँ से आप लोगों को मैं दे सकता हूँ अटेंडेंस.
Okay, everyone. Uh, I pasted the attendance link. Let's go through the attendance link. Whether it is working or not, let me show. Now check. Check now. Working now? Okay. Everyone, please mark your attendance. Assalamualaikum. Mustafa is still okay. Yeah, I'm still there, sir. Anyone remaining for attendance? I'm closing the link. Okay, Amit sir, you can start. Thank you so much. Hello, hello, hello.